A very good evening to you all, dear brothers and sisters in Christ. So we thank our Lord God Almighty and our Lord and Savior Jesus Christ for giving this wonderful opportunity to share and discuss His precious truth. So last week we have been studying about the church. What is the meaning of the church? So I hope you all have understood the meaning of church. The church is not a building, but church is the people. So who are the church? Who are there in the church? If you see, who are part of the church? If you see, they are the Christians. So we have seen who are the real Christians in the sight of God. Okay, so these are the people who actually not only believe in Jesus but also follow the Christians. So what is the meaning of following the footsteps of Jesus? If you see, then you see denying yourself, carrying the cross. You see, sacrificing our own preferences for the sake of the truth, for the sake of the Lord, for the sake of the brethren. So this condition, how much people they fulfill in this world, if you see, it is not the majority. It is only the few. Therefore, the Bible says, many are called, few are chosen. So many people are called to the truth, but in that one, only a few people are chosen, you see, to sacrifice their life. You see, I offer the bodies as a living sacrifice to the Lord. So we last time we saw what is this group composed of. You see, how many people are the true church? Is there any number? If you see, yes, we saw it last time, saying it is a number of. What is the number of the church? What is the number of the little flock? We're going to remain faithful to God until the death. What is the number? Vishal brother, Nita sister. Vishal brother, Nita sister. 144,000. Okay, good, very good. Okay. Uh, English is okay with you all, or should I switch it over to Hindi? English is okay? Yeah, yes, sir. Oh, good. Nita, sister, how about you? English is okay, sister? It's difficult for me. Okay. So you are comfortable in Hindi? Yes. Okay. So I'll try to speak a little bit of Hindi and English also. Okay. So Yes, sir. पिछले बार हमने बाइबल से पढ़ा था. सो यीशु क्रिस्तु का सभे उनका नंबर क्या है, उनका नंबर के बारे में हमने बाइबल में पढ़ा. तो वो क्या बोलते हैं बाइबल में, वो 1,44,000 करके बाइबल में लिखा है. तो बाइबल में किधर लिखा है? हम बाइबल में पढ़े तो रेवलेशन 14 चैप्टर में पहला वर्ष में वो लिखा है. सो रेवलेशन 14 चैप्टर में पढ़ा था, क्या लिखा है उधर? हाँ, कोई पढ़ सकता है क्या, नेपाली में या इंग्लिश में? नीता सिस्टर, बिसल ब्रदर, आप हिंदी में कोई एतराज नहीं है ना आपको? हिंदी में आपको ओके ना? Yeah, it's okay, sir. ओके. कोई पढ़ सकता है क्या रेवलेशन 14 चैप्टर पहला वचन? And I look, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 140 and 4,000, having the Father name written in their forehead. वेरी गुड. सो उधर जो लिखा है उनका पिता का नाम, वो उनका सिर पे लिखा है. जो उनका नंबर कितना है करके बोल रहा है इधर, 1,44,000 करके लिखा है. यानी परमेश्वर पिता का पूरा ज्ञान, पूरा योजन, उनका सभी को वो उनका मन में लिखे हैं. उनका नंबर जो है वो 1,44,000 है. इसलिए वो लोग को किधर से चुन रहे हैं परमेश्वर? हम देखा तो उसी अध्याय में तीसरा वचन में बहुत क्लियर से लिखा है, वो भूलोक से सभी जगह से उनको चुन रहे हैं. पढ़िएगा वो तीसरा वचन पढ़ेगा. नीता सिस्टर, आप पढ़ सकते हैं क्या नेपाली में तीसरा वचन?
नीता सिस्टर, आप सुन रहे हैं क्या? लाइन में है? Yes, sir. ओके, आप पढ़ सकते हैं क्या रेवलेशन 14:3 नेपाली में? मेरा हिंदी आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, थैंक यू। पढ़ सकते हैं क्या आप? नीता सिस्टर, सिस्टर, आप सुने दे रहे हैं आपको? Yes, sir. आप पढ़ सकते हैं क्या आप? Revelation 14 chapter 3 भन्नुभयो। हाँ, रेभेलेसनलाई नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा भएन। रेवलेशन प्रकाश। प्रकाश प्रकाश 14 हजुर में। हजुर। गुड विशल ब्रदर, प्लीज हेल्प। रेभेलेसन 14:3 च्याप्टर। अनि तिनीहरूले त्यस सिंहासनको सामु अनि ती 4 जीवित प्राणीहरू र ती प्राचीनहरूको सामु मानव एउटा नयाँ गीत गाए अनि पृथ्वीबाट किनेर छुट्याएका 1,44,000ले बाहेक अरू कसैले पनि त्यो गीत सिक्न सक्दैन थियो। तो इसमें आप देखो तो पृथ्वी में चुना है उन लोगों को करके बोल रहा है। सो पर्टिकुलर कौन सा जगह से नहीं लिखा है, पूरा पृथ्वी में, यानी पूरा कितना कितना देश है, सभी यहाँ से ये नंबर को परमेश्वर क्या कर रहे हैं? सिलेक्शन कर रहा है। ओके, आप 1,44,000 के बारे में वैसा ही कुछ चिंता किया तो अभी यीशु क्रिस्तु मरे हुए 2000 साल के ऊपर हो गया। सो उससे उसका हिसाब से आप कैलकुलेट किया तो एक साल के लिए हमारा परमेश्वर 71 सभे को सिलेक्शन कर रहा है, यानी हर मास 6 लोगों को सिलेक्शन कर रहा है। और प्रति 5 दिन के लिए एक नंबर का सिलेक्शन हो रहा है। ये देखो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर करके हमको दिखता है। और बाद में आप बाइबल में पढ़ा तो इधर हमने क्या देखा है? जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन बलिदान में देते हैं और वो जो है नैरो वे में जाते हैं, वो बहुत सारे लोग जाते हैं, मगर प्राइस कितना है? सिर्फ 144,000। सो बाकी लोगों के लिए क्या प्राइस है? अभी देखिए क्या, रेस में तो सभी जाते हैं, सभी भागते हैं, मगर सभी को प्राइस तो नहीं मिलता ना। मगर फिर भी एटलीस्ट रेस तो दौड़ते हैं ना। उनके लिए हमारा परमेश्वर क्या योजना बनाया है? सभी लोग परमेश्वर से ये उड़मड़क कवनेंट बनाते हैं, परमेश्वर से एक बंधन करते हैं। परमेश्वर, मैं अपना जीवित आपको बलिदान में देता हूं करके। मगर उसका हिसाब से कितना लोग चलते हैं? बहुत सारा नहीं। सो जो पिछवाड़े, जो गिर जाते हैं, उनके लिए भगवान ने परमेश्वर ने क्या योजना बनाया है, उसका बारे में आज पढ़ेंगे। ओके, तो उसका बारे में किधर लिखा है? आप देखो तो वो रेवलेशन 7 चैप्टर 9th वर्स में हमको लिखा है। प्रकाश 7 अध्याय 9वां वचन
कोई पढ़ सकते हैं क्या? रेवलेशन 7:9। विशाल ब्रदर, हाँ, नीता सिस्टर पढ़ेंगे, कोई भी पढ़िए, कोई बात नहीं। After this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongue, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palm in their hands. हाँ, इधर इस वचन में अब देखा तो बहुत बड़ा भीड़ के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ा भीड़, जिनका संख्या कोई भी काउंट ही नहीं कर सकता, उतना बहुत बड़ा भीड़ है करके बोल रहे हैं। मगर इस वचन में आप ध्यान कर आप पढ़े तो इधर क्या बोला है? वो सभी लोग किधर है? वो सभी लोग वो जो सिंहासन है, सिंहासन के आगे खड़े हैं। एक्चुअली चर्च और फेथफुल चर्च के लिए, सभी के लिए क्या परमेश्वर ने वाग्दान किया है? परमेश्वर ने जो वाग्दान किया है, आप मरण तक फेथफुल रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आपको सिंहासन में बैठने के लिए एक अवकाश दूंगा करके परमेश्वर ने बाइबल में प्रॉमिस किया है। सो चर्च के लिए जो रिवार्ड है वो सिंहासन के आगे नहीं है, सिंहासन के ऊपर बैठने का है। पढ़िएगा वचन, प्रकाशित 3:21। नीता सिस्टर पढ़ सकते हैं क्या रेवलेशन 3:21? यस सर। जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमाथि मसँग बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जय पाएँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमाथि बसे। सिंहासन, सिंहासन के ऊपर क्रिस्तु का बाजू में बैठने का अवकाश मिलेगा। किसको? जो मरण वరకు, हाँ, मरण तक परमेश्वर को फेथफुल रहेंगे, वो चर्च के लिए 144,000 फेथफुल चर्च के लिए सिंहासन, सिंहासन का ऊपर बैठने के लिए प्रॉमिस किया है। मगर इधर अगर रेवलेशन 7वां अध्याय में पढ़ा तो बहुत भीड़ है। वो बहुत भीड़ किधर है? सिंहासन के ऊपर नहीं है, सिंहासन के नीचे आगे खड़े हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जो है वो पूर्ण जयशाली नहीं है। यानी हमारा जीवित में जब हम परमेश्वर को अपना जीवित दान कर देते हैं, हमारे जीवित में बहुत कष्ट आएगा, बहुत संकट आएगा, बहुत तकलीफ ने झेलने पड़ते हैं, हाँ, सत्य का निमित्त, परमेश्वर का निमित्त, यीशु क्रिस्तु का नाम का वास्ता बहुत सारा झेलना पड़ता है। मगर कुछ लोग ऐसा है, उनको जाते 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 बहुत दुखित हो जाते हैं। वो वापस लोक में चला जाता है। लोक को छोड़ के क्रिस्तु का पीछे जाने के लिए मन किया था पहले, मगर जाते 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 उन लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? पिछवाड़े जाने के लिए दोबारा लोक में चले जाएंगे। इसलिए वो पूर्ण जयशाली नहीं है। क्रिस्तु ने क्या बताया रेवलेशन 3:21? मैं जैसा, मैं क्रिस्तु कैसा ओवरकम किया है, ऐसा ही जो ओवरकम करेगा सिर्फ उसी के लिए सिंहासन के ऊपर बैठने का चांस है, सभी लोगों को नहीं है। इसलिए ये लोग परमेश्वर को बलिदान नहीं दिया। कैसा बलिदान नहीं दिया? वॉलेंट्री बलिदान नहीं दिया। देखिए, बलिदान देने का दो तरीका होता है। एक, हाँ, स्वयं देने का है, और दूसरा क्या
बलात्कार से लेने का दो तरीका है। यानी स्वयं देने का मतलब क्या है? वॉलेंटरी, खुद ब खुद, बहुत संतोष से परमेश्वर के लिए क्या करना? छोड़ देना है। मगर ये जो है ये काम सिर्फ 144 लोग कर सकते हैं। बहुत बड़ा भीड़, उनके लिए वो मन नहीं होता परमेश्वर के लिए पूर्ण हृदय से स्वयं खुद ब खुद बलिदान देने का मन नहीं होता, इसलिए उनका बलि छीन लिया जाता है। बहुत हाँ, क्या बोलते हैं, फोर्स फोर्स लगाने के बाद उनको बलि को क्या करते हैं? वो परमेश्वर को देते हैं, बहुत प्रेशर डालने के बाद। यू सी, सो वो लोग 144,000 में नहीं आ सकते। इसलिए हाँ, आप बाइबल में पढ़ा तो क्या बोलते हैं? हाँ, शैतान ये सभी लोग का, सभी लोगों को कैसा अपना पास रखा है। आप बाइबल में पढ़ा तो मरण के डर, मरण की डर सभी में पैदा किया है। इसलिए सभी लोग डर के परमेश्वर को अपना जीवन को सौंपने का बहुत चिंता करते हैं। वही Hebrews 2:15 में बोल रहा है। इसी सो ये काम सभी से नहीं होगा। सिर्फ एक छोटा सा और भीड़ है, उन्हीं से वो काम होगा। बहुत बड़ा भीड़, उनसे बहुत झेलना पड़ता है। और बाद में ये रेवलेशन 7वां अध्याय में आप जो वचन पढ़े उसमें आप पढ़ा तो वो क्या लिखा है? वो बहुत बड़ा भीड़, उनके हाथ में क्या था? क्या बोलते हैं हिंदी में? एक पाम ब्रांचेस था। हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पाम ब्रांचेस के लिए? हाँ? नेपाली में क्या बोलते हैं आप? Rajesh brother, we call it khazur, khazur, खजूर, खजूर का khazur, boat, हाँ, ठीक। उसमें क्या लिखा है? खजूर का ये boat, क्या क्या? boat. वॉइस इज डिस्टर्बिंग। खजूर का हागा. ओके, लीव इट, मैनेज इट, नॉट इशू। सो खजूर का जो है वो हाथ में लेके वो ते, उसका मतलब क्या है? आप बाइबल में पढ़ा तो अभी बाइबल में ओल्ड टेस्टिमेंट है, ओल्ड टेस्टिमेंट पढ़ा तो उधर बहुत बड़ा बड़ा युद्ध हो रहा था। उसके बारे में बहुत सारा जगह बाइबल में लिखा है। मगर जब जब युद्ध होता था, उसका युद्ध के बाद जो राजा जयशाली होके जब यरूशलेम के अंदर आ रहा था, एग्जाम्पल दावीद, दावीद के बारे में बाइबल में लिखा है ना। ये, वो जब आ रहे थे उसको कैसा वेलकम कर रहे थे लोग, आप पूछा तो ये खजूर का क्या बोलते हैं आपको, हाथ में हाँ ये ब्रांचेस लेके सभी को, राजा को वेलकम कर रहे थे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है आप जयशाली है, यानी आप युद्ध में जयशाली होके आप आ रहे हैं, उसी का मतलब है। अभी बाइबल में देखिए, यीशु क्रिस्तो यरूशलेम को आते हैं कभी, 500 के थोड़ा दिन पहले यरूशलेम को आते हैं। सो यरूशलेम को आए तो सभी लोग यीशु क्रिस्तो को कैसा वेलकम करते हैं? बाइबल में पढ़ेगा, सभी लोग हाथ में एक खजूर का ये लेके यीशु क्रिस्तो को ओसाना ओसाना, हाँ, इजराइलिन राजा ओसाना करके बुला के यीशु क्रिस्त को वेलकम किया। पढ़िएगा आप जॉन 12 चैप्टर 13 वर्स, जॉन 12 चैप्टर 13 वर्स। विशाल ब्रदर आप पढ़ सकते हैं क्या? Okay, sir. Took branches of palm tree and went forth to meet him, and cried, Hosanna! Blessed is the King of Israel that comes in the name of the Lord. हाँ, सी ओसाना, ओसाना। You see, they took the branch
पाम ब्रांचेस, उनका हाथ में क्या था? पाम ब्रांचेस था। उसको उसको वेव करके होसाना होसाना, उसका मतलब क्या है? साइन ऑफ विक्ट्री, आप जयशाली है। सो इधर आपने वचन में, रेवलेशन में वैसे ही ये सभी लोग, उनका हाथ में एक खजूर का ये रखा है, उसका मतलब क्या है? वो लोग भी जयशाली है, वो लोग भी ओवरकम किया है, वो लोग भी फाइट किया है। भाई कैसा फाइट किया है? हाँ, प्राइज विन होने के लिए कैसा फाइट करना है वैसा फाइट नहीं किया। खुद ब खुद, खुद ब खुद, यू सी, वॉलेंट्री वो फाइटिंग नहीं किया। जब बहुत प्रेशर डालते हैं, जब बहुत, यू सी, उसको फोर्स करते हैं, तभी वो काम करते हैं। इसलिए वो लोगों के लिए प्राइज देने का वो योग्यता खो चुके हैं वो सभी लोग। इसलिए वो वचन में क्या बोलता है? वो सिंहासन के आगे है, उनके हाथ में क्या है? एक खजूर का ये है करके। और बाद में वो वचन में पढ़ा तो क्या लिखा है? वो सफेद ड्रेस पहना था करके वचन में लिखा है। ये क्या सफेद ड्रेस? सफेद ड्रेस का मतलब क्या है? यही प्रश्न उधर एक एल्डर पूछते हैं। उसका उसका वचन पढ़ेंगे हम, रेवलेशन 7 चैप्टर 13 एंड 14। नीता सिस्टर पढ़ सकते हैं क्या? रेवलेशन 7 13 एंड 14। नीता सिस्टर अब लाइन में है? हाँ, पढ़ेगा। अनि ती प्राचीनहरूमध्ये एकजनाले मलाई यसो भन्दै जवाफ दिए, यी सेता वस्त्र पहिरेकाहरू को हुन्? अनि यिनीहरू कहाँबाट आए? अनि मैले उनलाई भने, हजुर, नै तपाईँ नै हुनु। अनि मैले अनि मैले उनलाई भने, हजुर, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। अनि उनले मलाई भने, यिनीहरू ती हुन् जो महासङ्कटबाट निस्केर आएका छन्, अनि यिनीहरूले थुमाको रगतमा आफ्ना वस्त्रहरू धोएका छन् र आफ्ना वस्त्रहरू सेता पारेका छन्। हाँ, अभी इधर पढ़े तो क्या लिखा है? ये कौन है? ये सफेद वस्त्र पहन के आए हैं, ये कौन है करके बोल रहे हैं। उसको बदल के उसका रिप्लाई क्या आता है इधर? उधर रिप्लाई आता है, ये बहुत कष्ट में, बहुत संकट में क्या किया है? ये वस्त्र को यीशु क्रिस्तु का क्या बोलते हैं, खून से क्या किया है उन्होंने? सफेद किया है, साफ किया है। सो इसका मतलब क्या है? ये क्या वस्त्र है? ये सफेद का वस्त्र का मीनिंग क्या है? बाइबल में पढ़ा तो परमेश्वर के बाइबल में क्या लिखा है? ये सफेद वस्त्र हमारा नीति करके बाइबल में लिखा है। यीशु क्रिस्तु का खून से हमको जो मिलता है वो नीति, उसका मतलब है वो नीति वस्त्र। पढ़ेगा रेवलेशन 19:8। बिसल ब्रदर, रेवलेशन 19:8, कैन यू रीड? And to her was granted that she should to array in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saint. हाँ, देखिए क्या लिखा है? फाइन लेनिन, वाइट, क्लीन एंड वाइट, वो क्या है? राइटनेस ऑफ द सेंट्स, नीतिमान होना का वो एक सूचन है। वो नीति वस्त्र परमेश्वर ने हमको दिया है। क्यों? क्यों दिया है? हमारा सभी नीति वस्त्र परमेश्वर के सामने कैसा है? पूरा पटा हुआ, हाँ, कपड़ा क्या तरह है। हम जो जो नीति न्याय करते हैं, हम जो जो अच्छा काम करते हैं, वो सभी परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, पटा हुआ कपड़ा है। इसलिए ऐसा हम परमेश्वर के सामने, हाँ, खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु क्रिस्तु का खून के द्वारा से
हमको एक नया वस्त्र दिया है। वो वस्त्र है, हाँ, वो परमेश्वर का द्वारा से जो मिलता है, वो नीति का वस्त्र वो बोलते हैं बाइबल में। पढ़ेगा दो वचन, येशाया 64 चैप्टर 6 वर्स, आइज़ाया 64:6। आइज़ाया 64:6 नीतास्टा पढ़ सकते हैं क्या? आइज़ाया 64:6। Isaiah 64. आशीष पर आई थिंक देयर इज डिस्टर्बेंस इन योर माइक, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन योर माइक। हाँ, ओके। पढ़िएगा आइज़ाया 64:6। तर हामी सबैजना अशुद्ध थाके जस्ता छौँ र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्नाहरू सरह छन्, अनि हामी सबैजना पा जस्तै ओइलिन्छौँ र हाम्रो अधर्महरूले हामीलाई बतासले झैँ उडाएर लगेका छन्। हाँ, हमारा सभी अच्छा अच्छा काम परमेश्वर के आगे क्या है? क्या बोलते हो उधर? सभी आपका नीति का काम कुछ भी नहीं है, पूरा अशुद्ध है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? यीशु क्रिस्तु का द्वारा हमको ये वस्त्र दिया है। पढ़ेगा आइज़ाया 61:10। विशाल ब्रदर, कैन यू रीड आइज़ाया 61:10? Okay. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decked himself with ornaments, and as the bride adorneth herself with her jewels. You see, he had covered me with a robe of righteousness. परमेश्वर ने क्या किया? हमको ये नीति का वस्त्र पहनाया है। क्यों? किस लिए ये? क्योंकि हम जब लोक में रहते हैं, ये जो क्या संसार में रहते हैं, बहुत सारा गंदा, हाँ, थॉट्स हमको आता है, गंदा काम करते हैं, हाँ? पाप बहुत करते हैं ना। कैसे करते हैं पाप? हमारा आलोचन में करते हैं, हमारा बात में करते हैं, हमारा क्रिया में करते हैं। जानबूझ के तो सभी लोग नहीं करते, मगर हो जाता है, पाप तो हमारे साथ हो जाता है। अभी जब जब एक एक पाप करते हैं, तब तब क्या होता है? ये जो सफेद वस्त्र दिया ना, उसमें एक धब्बा लग जाता है। अभी धब्बा लगने से क्या हो जाता है? कपड़ा खराब दिखता है। उसको क्या करना? इमीडिएटली धो देना है, उधर ही धो देना है। चलिए समझे, हम चाय पी रहे हैं, चाय गिर गया शर्ट के ऊपर, वाइट शर्ट के ऊपर, सफेद शर्ट के ऊपर। अब क्या हो जाएगा? वस्त्र वो बहुत, हाँ, गंदा वैसे ही दिख जाएगा। इसलिए क्या करना है? इमिडिएटली क्लीन करना है। इमिडिएटली क्लीन कर दिया तो वो दाग चले जाएगा। वैसे ही छोड़ के, हाँ, शाम तक या कल तक, हाँ, बहुत सारा दिन के बाद दो तो वो वस्त्र सफेद दिखेगा? नहीं दिखेगा। वैसे ही भाइयों बहनों, हम जो लोग में ये क्या बोलते हैं, उस लोक में, या ये संसार में जब रहते हैं, एक एक पाप जब जब हमारा से हो जाता है, तब तब एक, हाँ, धब्बा इधर पड़ जाता है। इमीडिएटली क्या करना है? इमीडिएटली प्रार्थना में जाके परमेश्वर से विनती करके, परमेश्वर, ये जानबूझ के हमने नहीं किया है, ऐसा हो गया, मगर इसको हम क्या करेंगे? उसको यीशु क्रिस्तु का खून से धो डालिएगा, हमारा पाप को माफ कर दीजिएगा, दोबारा एक मौका दीजिएगा। मैं सचमुच में आपको क्या करके दिखाऊंगा, आपको फेथफुल रहूंगा। नहीं, ऐसा क्या करना? इमीडिएटली धो देना। मगर ये काम, हाँ, तभी का तभी धोने का काम कौन करता है? आप बाइबल में देखा तो
वो 144,000 करते हैं। वही खुद ब खुद बलिदान देना है एग्जाम्पल। मगर ये जो बहुत बड़ा भीड़ है, उनको भी यही वस्त्र दिया है। वे वस्त्र के ऊपर जब जब पाप करते हैं तभी तभी दाग चलता रहता है। ये बहुत बड़ा भीड़ इमीडिएटली वॉश नहीं करते। देखेंगे, हाँ, सुबह प्रार्थना किया तो नाइट को ही प्रार्थना करेंगे। कुछ ब कुछ लोग प्रार्थना ही नहीं करेंगे। देखेंगे, साल को एक बार प्रार्थना करेंगे, कभी क्रिसमस पे, वरना तो गुड फ्राइडे के। गुड फ्राइडे में परमेश्वर क्रिस्तु यीशु हमारा पाप सभी धो डालिएगा। वो तो डोल देंगे, धो धो देंगे। कैसे धोएंगे? एक ही साथ साल साल भर का पूरा गंदा एक ही साथ निकालना है तो वैसा इजी है क्या? नहीं, उसको किधर देना है? ड्राई वॉश के लिए धोबी को देना है। धोबी कैसा वॉश करेगा? पूरा केमिकल डालेगा, उठाएगा, दबा 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 क्या मरेगा। तभी वो क्या होगा, उसमें गंदगी निकल जाएगा। परमेश्वर ये बहुत बड़ा भीड़ के लिए वैसा ही करेंगे। जो नीतिमान होने का वो स्थान को मेंटेन जो नहीं किया है, वो परमेश्वर का विरुद्ध चल गया है। इसलिए उसको क्या करेंगे? बहुत बड़ा संकट में डालेंगे। बहुत बड़ा संकट में डाल के अच्छा सा मार 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 के देखेंगे। देखो, मार के दिया तो क्या हो जाएगा? अयो परमेश्वर माफ कर दो करके आ जाएंगे। वो वस्त्र को क्या करेंगे? वॉश करेंगे। मगर वो बहुत लेट हो जाएगा। किसके लिए बहुत लेट? वो प्राइज विन करने का लायक नहीं होगा। परलोक रक्षण को जाएंगे, मगर वो 144 में एक नहीं हो सकते। इसलिए यीशु क्रिस्तु दोबारा जब आएंगे ना सेकंड कमिंग में, बाइबल क्या बोलता है मालूम? यीशु क्रिस्तु धोबी की तरह बैठ के वस्त्र को साफ करेगा करके बाइबल में लिखा है। किधर लिखा है? पढ़ेगा वचन, मलाकी तीसरा अध्याय दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेगा। मलाकी 3rd chapter 2 and 3। कौन पढ़ेंगे? विशाल बता रहे, नीता सिस्टर, कौन पढ़ सकते हैं? हम्म। But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner fire, and like a fuller's soap, and he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the son of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. क्या लिखा है इसमें? हाँ, जब दूसरा आगमन में क्रिस्तु आएंगे, कैसे दिखेंगे वो रिफाइनर के फायर की तरह होंगे। एक फुलर सोप, यानी मतलब क्या है? वॉशिंग सोडा की तरह होंगे करके बोल रहे हैं। धोबी घाट में कैसा धोबी कपड़ों को धोता है, वैसा ही यीशु क्रिस्तु उधर बैठ के रिफाइन करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। तो जब दो बहुत संकट में डालेंगे किसी को, तभी क्या हो जाएगा? ये सभी लोग का आशा पासा सब भी छोड़ के क्रिस्तु को पकड़ेंगे। अयो परमेश्वर हमको माफ कर दीजिएगा, हमको बचाइएगा। इसलिए बाइबल में बोलते हैं, क्या बोलता है मालूम? हमारा कैरेक्टर को बाइबल में एक दूसरा दूसरा घर बनाने का कंपैरिजन देते हैं बाइबल में। घर बनाने के बाद क्या करेंगे? घर को परीक्षा करेंगे ना। है, परीक्षा करने से वो घर क्या होना? वो परीक्षा में पास होना, तभी अच्छा मकान है करके बोलेंगे ना। वैसा ही हमारा जो गुण है, हमारा जो कैरेक्टर है, क्रिस्तु के ऊपर कैसा बिल्ड किया है हमने, वो परमेश्वर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? चलिए पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियर 3rd अध्याय 11 से 15 तक पढ़ेगा। 1 Corinthians 3rd chapter 11 to 15। नीता सिस्टर, आप पढ़ सकते हैं क्या?
किनकि त्यस बसालिएको जगलाई छोडेर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ कसैले पनि अर्का जग बसाल्न सक्दैन। अब कसैले त्यस जगमाथि सुन चाँदी रत्नहरू काठ घाँस परालले बनाउँदै लैजान्छ भने हरेकको कामबाट प्रकट हुनेछ, किनकि त्यस दिनले त्यो काम देखाउनेछ, किनकि त्यो आगोद्वारा प्रकट गरिनेछ अनि हरेकको काम त्यो कस्तो किसिमको रहेछ भने आगोले जाँच गर्नेछ। कसैको काम जुन काम उसले त्यस जगमाथि बनाएको छ रहिरह्यो भने उसले इनाम पाउनेछ। कसैको काम जलिजान्छ भने उसले हानि भोग्नेछ, तर ऊ आफै चाहिँ बाँच्नेछ, तर आगोबाट भएर उम्के जस्तो। हो गया, पूरा खत्म हो गया सिस्टर। हाँ? यस सर। आपको कुछ पता चला इसमें? जो आपने पढ़ा आपको समझ में आया क्या? इसमें समझ में आया आपको? नीता स्टर, वेट आशीष। नीता स्टर, आपको समझ में आया क्या? हाँ कि ना? हम्म, ना। ना। हाँ, कोई बात नहीं। मैं क्यों पूछा हूँ, अगले बार जब आप पढ़ेंगे थोड़ा स्लो से पढ़िएगा। एक एक शब्द जो है ये अंडरस्टैंड होके आपको अंदर जाना है, निदान से पढ़ेगा, आराम से पढ़ेगा। ओके, अब देखिए इसमें इसका वचन जो है मैं समझ जाता हूँ आपको। अब क्या बोल रहे हैं इस वचन में? यीशु क्रिस्तु ही फाउंडेशन है, उसका ऊपर क्या करना है हमको? ये बिल्ड करना है। एक क्या करना है? अच्छा, बिल्डिंग, उसको क्या करना है? खड़ा करना है, क्या बोल रहे हैं? चलिए, कैसा कैसा खड़ा करना? अभी इसमें 6 एग्जाम्पल देते हैं। घर कैसा बना सकता है? हाँ, घर को सोना से बना सकता है, चांदी से बना सकता है, और बाद में प्रेशियस स्टोन्स, रत्न, उससे भी बना सकता है। उसके बाद में क्या लिखा है? हाँ, उसके बाद में क्या लिखा है? अभी देखिए। हाँ, क्या बोलते हैं उसको आपके भाषा में? हाँ, बिसल ब्रदर, क्या बोलते हैं आपके भाषा में? लकड़ी ना, लकड़ी, और बाद में वुड है इन स्टबल, क्या बोलते हैं उसके भाषा में आपको? हम्म, वुड है इन स्टबल। हाँ, Sir, I don't know. okay, you don't know, so you have Nepali Bible with you. Yeah. Can you read that verse 12? First Corinthians 3:12, 1 Corinthians 3:12. 3:12. Okay. अब यदि कुनै मानिसले यस जगमाथि सुन चाँदी बहुमूल्य पत्थर काठ घाँस वा पराल प्रयोग गरेर घर हाँ, बनायो भने घास, करेक्ट ना? घास, या और बाद में काठ पराल काठ पराल। अभी देखिए, अभी 6 आइटम दिया है। अब देखिए, ये 6 आइटम में घर बनाने से वो इजी तो नहीं बनता है, बहुत खर्च करना पड़ता है। अब देखिए, घास में घर बनाने के लिए कुछ भी खर्च करना जरूरत ही नहीं है, आराम से बन जाएगा। मगर सोने से करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। वैसा ही क्रिस्तु का जैसा, सोने जैसा गुण हमको डेवलप करना है तो वो इजी से नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल है। मगर मुश्किल है तो उसमें प्राइस भी वैसा ही है। अभी देखिए, पूरा गन घर बन गया है, समझिएगा। एक सोने का है, एक चांदी का है, एक रत्न का है, और एक घास का है। सभी को जाके परमेश्वर कैसे परीक्षा करेंगे? इस वचन में क्या लिखा है? वो सभी को जाके अग्नि में डालेंगे। अब आप ही बोलेगा, अग्नि में डाला तो घास क्या होगा? घास को क्या होगा अग्नि में डाला तो? बोलिएगा, अग्नि में घास को डालने से क्या होता है? So it will burn. लिटिल बर्न, पूरा जल जाता है। वैसा ही
यानी हमारा गुण को परमेश्वर कैसा चेक करेंगे? अग्नि। अग्नि मतलब क्या है? हमारा जीवन में जो आता आता है कष्ट संकट। कष्ट संकट में डाल के परीक्षा क्या करेंगे? क्या करेगा ये लोग? हमारा गुण उधर पूरा भस्म हो गया तो हमारा गुण सोने जैसा नहीं है, चांदी जैसा नहीं है। उनके लिए रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, प्राइज नहीं मिलेगा। वो सभी लोग 144,000 में एक नहीं हो सकते, इसलिए उनको प्राइज नहीं मिलेगा। मगर ये वचन जो क्या बोलते हैं आखिरी में पढ़े तो, फिर भी परमेश्वर उसको रक्षा करेंगे। कैसा रक्षा करेंगे? आग से जो मनुष्य बस निकलता है वैसा उनका रक्षा करेंगे करके बोल रहा है। यानी मतलब क्या है? आग से, हाँ, कभी भी देखा है क्या कोई लोग, बचाव वो लोग, हाँ, आधा आधा क्या हो जाएगा उनका? पूरा पूरा जल जाएगा ना, आधा जिंदा रहेगा। वैसा आदमी की तरह हो जाएगा। यानी वो पूरा रिवॉर्ड लेने का योग्य नहीं है। ये बहुत बड़ा बीड का कैरेक्टर है। इसलिए हाँ, अभी आप बाइबल में पढ़ा तो, हाँ, एक और वचन पढ़ेगा, 1 Corinthians 5:5। पहला कुरिन्तर 5वां अध्याय 5वां वचन। कौन पढ़ेंगे? पढ़िएगा स्टार, निदान से पढ़िएगा। त्यो मान्छे शरीर हम्म त्यो मान्छे शरीर विनाशका निम्ति शैतानको हातमा सुम्पियोस् कि आत्मा चाहिँ प्रभु येशूको दिनमा बचाइयोस्। देखिए वचन में क्या बोल रहे हैं? परमेश्वरी ये सातारा लोगों को क्या कर देंगे? शैतान के हाथ में दे देंगे। अरे ये अच्छी बात है क्या? परमेश्वर क्या करेंगे? हमेशा हमने क्या सोचा था? शैतान से छीन के उनके यहाँ लेके आएंगे। मगर इधर बोल रहे हैं कुछ लोग ऐसा है, परमेश्वर खुद ब खुद वो लोगों को शैतान के हाथ में दे देंगे। अभी समझेगा क्यों देंगे? क्यों? वो बहुत ये संसार को बहुत प्यार कर रहे थे। यीशु कृष्ण ने क्या बोला है? जिन जिन को मेरा पीछे आने का मन है, पहले क्या कीजिएगा? खुद ब खुद क्या कीजिए आप? हाँ, निराकृत करना है। दूसरा कंडीशन, क्रूस उठाना है। तीसरा कंडीशन, मेरा पीछा आना है। देखिए, पहला कंडीशन पूरा त्याग देना है करके बोल रहे हैं, वही काम नहीं किए। वो पूरा लोक में पूरा अपना मन दे दिए थे, पूरा संसार में ये लोक में ही पूरा डूब गए थे। इसलिए परमेश्वर क्या करेंगे? वो लोक से ही, ये संसार से ही उसके लिए बहुत ट्रबल लेके आएंगे। यानी खुद ब खुद शैतान के हाथ में दे देंगे। अभी समझेगा, हम शैतान के हाथ से निकल के आए हैं, खुद ब खुद शैतान के हाथ में परमेश्वर ने दे दिया, तो शैतान हमको चुप के छोड़ेगा क्या? क्या कर देगा? पूरा निचोड़ लेगा, पूरा क्या हमको भयंकर, हाँ, और कष्ट में डाल देंगे। ये इसलिए बोलते हैं, हाँ, हमारा त्याग को परमेश्वर को वॉलंटरी में देना है। इसलिए ये सभी जो बीड़ है, ये अपना वस्त्र को यीशु क्रिस्तु का खून में साफ करके आए हैं। कभी, अभी नहीं, इस जीवित में नहीं है। अभी जो अच्छा रहता ना, वो न वो सिचुएशन में बहुत कष्ट में जब डालते ना, तब भी उनको मालूम होता है क्रिस्तु का खून का वैल्यू। इसलिए वो सिंहासन के ऊपर नहीं है, सिंहासन के आगे है। आगे क्या कर रहे हैं? सिंहासन के आगे, हाँ, अभी पढ़िएगा परमेश्वर क्या करेंगे उसको। विशाल बदर पढ़िएगा आप, Revelation 7:15-17 बदर। Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in the temple. हाँ, एक बार एक मिनट ब्रदर। सो इसलिए, ये कारण के लिए, इसलिए, इसके वजह से लिए
क्या कर रहे हैं? वो सिंहासन के आगे है, सिंहासन के ऊपर नहीं है। पूरा सेवन करेंगे, यानी मतलब क्या क्या? हाँ, पूरा सेवक की तरह, हाँ, सर्वेंट्स की तरह काम करेंगे। राजा की तरह बैठ के, हाँ, राजबारी नहीं कर सकते क्रिस्तु के साथ। बाद में पढ़ेगा, बता, कंटिन्यू पढ़ेगा। हाँ। And he that sitteth on the throne shall dwell among them. They shall hunger no more, neither thirst any more, neither shall the sun light on them, nor any heat. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of water, and God shall wipe away all tears from their eyes. हाँ, गॉड शैल वाइप अवे ऑल टीयर्स फ्रॉम देयर आईज। परमेश्वर उनका आत्मा, सभी जो आंसू है उनको पहुंच देंगे। उतना ही कर सकते हैं। यो परमेश्वर, हमने प्राइज को लिया, प्लीज आपको पांव पकड़ता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, प्लीज प्राइज दे दीजिए करके बोलेंगे तो दे देंगे? नहीं। रो मत बेटा, रो मत करके आंख को पहुंचेंगे बस, मगर प्राइज नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ भाइयों और बहनों, अभी हमको चांस है। अभी आंसू, हाँ, अभी आंसू बसाए तो क्या उनको, हमको हमको क्या मिलेगा? एक और अपॉर्चुनिटी, एक और चांस मिलने का चांसेस है। मगर सभी खोने के बाद आंसू छोड़ा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाइबल में जो लिखा है, मालूम आपको क्या लिखा है? आपको इस जगत में, इस संसार में कष्ट संकट है, मगर फिक्र मत कीजिएगा, घबराएगा मत। क्रिस्तु ये जो रास्ते में पहले ही जा चुके हैं, हमको मदद करेंगे। वचन पढ़ेगा जॉन 16:33। नीता सिस्टर पढ़ेगा जॉन 16:33, निदान से पढ़ेगा जॉन 16:33। हम्म, पढ़ेगा योवान 16:33। ममा तिमीहरूलाई शान्ति मिलोस् भनेर यी कुराहरू मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। हाँ, संसार में संकट हो, मगर यीशु ने क्या बोला? फिक्र मत कीजिएगा, फिक्र मत कीजिएगा, मैं संसार को क्या किया हूं? ओवरकम किया हूं, आपको मदद करूंगा। ये भरोसा हमको रहना चाहिए। किन किन को ये भरोसा रहेगा, वो सभी लोग प्राइज जीत जाएंगे। ओके। सो ये जो है, इन आज का पार्ट जो है वो बहुत बीट के बारे में था। इसका यूट्यूब लिंक भेजेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको जो जो क्रिश्चियंस का फ्रेंड है, वो सभी को शेयर कीजिएगा। पीडीएफ नोट्स भेजेंगे, आप प्लीज पीडीएफ नोट्स को नेपाली में है रिवाइज कीजिएगा। कुछ भी डाउट है कभी भी है तो तुरंत, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज, हमको ये है डाउट से करके इमीडिएटली हमारा ब्रदर सभी को क्लैरिफाई करेंगे। ओके। कुछ भी डाउट है क्या? कुछ भी प्रश्न है क्या? सिस्टर नीता सिस्टर, बिसल ब्रदर, कुछ भी प्रश्न है क्या आपको? क्या भी पूछना है आपको? Sir, I want to ask one question. या प्लीज ब्रदर। So we were just learning about the sacrifice, and I want to ask the questions. Why sacrifice is needed for our sin? We don't need to sacrifice anything for our sin, but the blood of Jesus cleanses us from all sin. We don't need to sacrifice anything for our sins, because whatever we pay for our sin, we can never atone for our sin. It is only by the blood of Jesus. Okay, brother? Okay, sir. Okay. Okay, because the Bible says the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. You should have that confidence and 100% faith on the Lord.
Okay. Okay, sir. But why blood is needed? Why blood is needed? Because in the blood there is life. The Bible says, in the blood there is life. So without shedding of blood, you cannot atone. Atone means what? You remember the first class what we take? We took the class about ransom. You hope you heard the subject about ransom, brother? Yes, sir. Equal corresponding price. Very good, brother. So Adam was the one who sinned. It was Adam's life that was condemned. It was his blood that was poured out. So if you have to redeem that blood, what does God demand? Eye for an eye, teeth for a tooth, leg for a leg, hand for a hand, and life for a life, blood for blood. That is the reason blood is required. Okay? Okay, sir. Thank you for explanation. Okay. Any नीता सिस्टर आपको कुछ प्रश्न है क्या? नहीं सर। ओके हमारा हिंदी आपको समझ में आता है? आता है। आता है कि नहीं? सचमुच में बोलेगा थोड़ा थोड़ा आता है कि आधा आता है आता यानी कुछ भी नहीं आता? थोड़ा थोड़ा आता है आपको? यस सर। ओके गुड कोई बात नहीं. ओके पीडीएफ नोट्स भेजेंगे आप रिवाइज कीजिएगा. ओके चलिए एक अंत में एक प्रार्थना करके हम क्लोज करेंगे.